our school, Saraswati Bal Mandir, Rajouri Garden, and elucidate to you about its history and its parent organizations Samaj Shiksha Samiti and Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. So, let's begin. Managed by Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan, better known as Vidya Bharati, is the world's largest educational NGO that has been providing education since 1952 and is committed to educate young generations imbibing Indian values and culture. The first school was set up in Gorakhpur, UP in 1952. They named this school as Saraswati Shishu Mandir, Temple of Goddess Saraswati, and dedicated it to the children. With their zeal, dedication and hard work, numerous schools came up across all over India. Good education and sound sanskars earned them popularity, honor and respect in the society. The formation of a national body came to existence in 1977 and Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan was established with its registered headquarters at Lucknow and functional headquarters in Delhi. All state level committees were affiliated to this Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. आइए जानें विद्या भारती का दृष्टिकोण और शिक्षा के क्षेत्र में उसका कार्य करने का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य शिक्षा द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो राष्ट्रभक्त हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्राणिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, जो वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके, जो समाज सेवा का भाव रखे एवं समाज में उपस्थित सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहे। In Delhi, Samaj Shiksha Samiti is the state level committee that is affiliated to and runs under the aegis of Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan. 28 schools in Delhi are divided into 4 zones and thousands of students are studying under the guidance of competent 600 teachers. Our school, Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School, Rajouri Garden, established in 1964, is an institution that is working under the aegis of Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan that provides a learning space and learning environment for teaching of students under the co-curricular activities for the diverse needs and for the holistic growth of our scholars. Our school strives to lead them on the path of Panchkosh that leads to heighten one's understanding and to uncover one's true nature. The 5 fundamental and pivotal subjects being physical education, Yoga, music, Sanskrit, and moral and spiritual education. Our school has always strived to make our students responsible citizens and responsible human beings. Let's hear more about our organization from some of our officials. नमस्कार जी, आज हमारे बीच में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री श्री बालकृष्ण जी आए हुए हैं और मेरा इनसे अनुरोध है कि हमने विद्या भारती के विद्यालयों के माध्यम से अपने भारत को सुंदर बनाने का एक स्वप्न देखा है। कृपया उस स्वप्न को हम कैसे साकार कर सकते हैं, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उस राष्ट्र के विद्यार्थी होते हैं और उन विद्यार्थियों को संस्कृत करने का माध्यम होता है विद्यालय। विद्या भारती पूरे देश में लगभग 25,000 विद्यालय चलाती है, जिनके अंतर्गत 36 लाख विद्यालय पढ़ते हैं, 1.5 लाख आचार्य का परिवार है। विद्या भारती इसके माध्यम से अपने समाज में टोटल सोशल रिफॉर्मेशन अर्थात अपने समाज का उत्कृष्ट विकास करने के लिए एक अभियान लेके चल रही है। इस अभियान में विद्या भारती के अंतर्गत विद्यार्थी शिक्षा की पढ़ाई के साथ साथ संस्कार लेने का काम भी करता है और वो संस्कार बड़े होकर के जीवन में काम आते हैं। उन संस्कारों के कारण से उसकी पहचान बनती है और वो पहचान देश की पहचान बनती है। और यही विद्या भारती के लक्ष्य है। जिस देश के विद्यार्थी बड़े होकर के वो जीवन में डॉक्टर बनेंगे,
इंजीनियर बनेंगे या सीए बनेंगे, वो देश के हित में बनेंगे और देश के हित में काम करेंगे। उनके मन में एक सपना रहता है कि मुझे जिस विद्यालय के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई है, उस शिक्षा के माध्यम से मेरे साथ जो संस्कार मिले हैं, वो संस्कार मुझे जीवन में बने रहने चाहिए। इसके लिए विद्या भारती समय समय पर ऐसे विद्यार्थियों को एलुमनाइज के रूप में विद्यालय में बुलाती रहती है। वो केवल आते हैं विद्यालय में, ऐसा नहीं है, वो विद्यालय में आकर के समाज के हित में कुछ करने की मन की भावना व्यक्त करते हैं कि मैं विद्यालय के संस्कारों के कारण से जो कुछ कर पा रहा हूँ, उसकी देन मेरा विद्यालय है। ऐसा एक मिशन विद्या भारती का चल रहा है और विद्यालय के साथ जुड़े विद्यार्थी, उनके अभिभावक यानी पेरेंट्स, आचार्य, पूर्व छात्र और प्रबंधन समिति, ये सब मिलकर के विद्यालय को चहुमुखी विकास तक पहुंचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा विद्यालय चलाने की संकल्पना हम सब विद्या भारती के माध्यम से समाज के बीच में चलाते हैं। और विद्या भारती ये भी विचार करती है कि विद्या भारती के विद्यालय अपने विद्यालय नहीं है, सब समाज के विद्यालय हैं। इसलिए ऐसे समाज के विद्यालयों को सहयोग करने के लिए विद्या भारती की एक विशेष कार्य पद्धति है। वो कार्य पद्धति अन्य विद्यालय, वो चाहे निजी विद्यालय हों चाहे संस्थागत विद्यालय हों, वो भी इस पद्धति को अपना सकते हैं। उसमें से केवल एक बात मैं ध्यान कराना चाहता हूँ, वो है विद्या भारती की प्रातःकालीन होने वाली वंदना सभा। उस वंदना सभा को लेकर के विद्यालय में जो पूरे दिन का वातावरण तैयार होता है, उसके कारण से बालक दिन भर उत्साहित रहता है और उसके कारण से पढ़ाई में मन लगता है, उसका दिन पूरा अच्छा रहता है। इसलिए इस कार्य पद्धति को अन्य विद्यालय भी अपनाएं, ऐसा भी विद्या भारती का अभियान है। कुल मिलाकर के विद्या भारती अपने एक समाज के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने का मिशन लेकर काम कर रही है। ऐसा विद्या भारती का लक्ष्य मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं भारत माता के माथे का चंदन हूँ, मैं सोच हूँ, उत्साह हूँ, उमंग हूँ, अभिनंदन हूँ। मैं देश के शिक्षा रूपी रथ का सारथी हूँ, मैं अडिग हूँ राष्ट्र सेवा के पथ पर। मैं प्रगतिशील हूँ, ओजवान हूँ, समर्थ हूँ, मैं विद्या भारती हूँ। जी हाँ, विद्या भारती जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1952 से अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाए हुए है, इसी का एक शिक्षा संकाय है समर्थ शिक्षा समिति, जिसके दिल्ली में 30 से भी अधिक विद्यालय चल रहे हैं और लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी इसके विद्यालय समाज में, सामाजिक क्षेत्रों में संलग्न हैं और अपनी एक विशेष पहचान बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच आज विद्या भारती समर्थ शिक्षा समिति के महामंत्री श्रीमान कुलवीर कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। सर से हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल की लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे विद्यालय, इनका सामाजिक क्षेत्र में एक विशेष योगदान रहा है और ये निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए? सर, इस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में हमारा कोई भी विद्यालय बंद नहीं हुआ, जबकि बाहर देखते हैं तो कई विद्यालय दिल्ली में भी बंद हुए, इवन सरकारी विद्यालय भी बंद हुए। लेकिन हम परिवार के नाते सब लोगों से बात करते हैं। परिवार है, हमारे 5 इसके तत्व हैं, जिसमें सबसे पहले जो छात्र हैं, आचार्य हैं, आचार्य के बाद फिर पूर्व छात्र हैं, कार्य समिति है और इसके साथ साथ अभिभावक हैं। तो ये पंच प्राण जो हमारे हैं, इनके साथ मिलकर के हम विद्यालय चलाते हैं और सिर्फ विद्यालय ही नहीं चलाते, समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन हो, अचूलपूर्व परिवर्तन के लिए हम ये कार्य करते हैं। हम छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का कार्य करते हैं और अपने, जैसे मैंने बताया, परिवार के नाते हम किसी के पास अगर किसी के शुल्क नहीं है तो हम समाज से शुल्क लेकर के उस बच्चे को पढ़ाते हैं। और हम जैसे बताया कि शिक्षा के साथ हम संस्कार देते हैं, तो उसके अंदर जो भाव
समाज के प्रति होगा और जो भाव देश के प्रति होगा उसको लेकर के हम चलते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि डॉक्टर बने, हम किसी को ये नहीं कहते इंजीनियर बने, हम किसी को ये नहीं कहते कि एडवोकेट बने, हम कहते हैं अच्छा इंसान बने, और उसी लक्ष्य को लेकर के हम विद्या देते हैं। बहुत बहुत सुंदर विचार सर का। सर, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट नेटवर्क ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, विद्या भारती। जी हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो एक क्या विशेषता है हमारे विद्यालयों की जो हमें बाकी प्राइवेट स्कूल से अलग दिखाती है? हमारी क्या पहचान और क्या उत्कृष्टता है जो समाज में हमारे विद्यालयों को बाकी भीड़ से एक अलग पहचान देती है? जैसा मैंने बताया, हम शिक्षा के साथ समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और उसी के कारण से हमारा ये उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैंने बताया जैसे कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने, हमारे छात्रों ने, हमारे अभिभावकों ने स्वयं प्रेरणा से खड़े होकर के समाज में सहायता सेवा का कार्य किया है। किसी के पास अगर कोई दवाई चाहिए तो दौड़ करके हमारे पूर्व छात्र उनके घर गए हैं और उनके यहाँ दवाई पहुंचाई है। कोई सिलेंडर चाहिए उसकी व्यवस्था करिए, भोजन की व्यवस्था करिए। तो इस तरह से पूरे समाज को हम साथ लेके चले, उसमें परिवर्तन आए, इसी उद्देश्य से हम कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ आप यहाँ पर आए। थैंक यू सर। नमस्कार। आज हमारे साथ विद्या भारती समाज शिक्षा समिति के पश्चिमी विभागीय समिति के अध्यक्ष श्रीमान विनीत भाटिया जी हमारे साथ हैं, जो एक बड़े उद्योगपति हैं और हमारे विद्यालयों की समय समय पर आर्थिक सहायता भी करते रहते हैं। और भाई साहब सहकारी जो हमारे पास केशव सहकारी बैंक है, भाई साहब उनके चेयरमैन भी हैं। भाई साहब, इतने लंबे समय से आप हमारे विद्यालयों के साथ जुड़े हुए हैं। विद्या भारती का जो एक संस्कारमय वातावरण है, जो बच्चों को दूसरे विद्यालयों से कुछ अलग देने का प्रयत्न करता है, भाई साहब उन विद्यालयों के बारे में आपका क्या विजन है? प्लीज आप कुछ अपने इस बारे में विचार बताएंगे। समाज शिक्षा समिति का मेन उद्देश्य ही संस्कार देना है बच्चों को। जैसे कि आपने बताया अभी सबको कि मेरे पास अन्य अन्य दायित्व भी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सब दायित्व जो मैं अभी निभा रहा हूँ, जो प्रेरणा है मेरे पास, वो सब मेरे को समाज शिक्षा समिति से ही मिली। मैं खुद हरिनगर सरस्वती बाल मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ। 1987 में मैंने वहाँ से पास आउट किया। सारे जो है अपने जीवन में आगे जो भी मैंने संस्कार वहाँ से लिए, उसको मैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे उतार रहा हूँ। जो मेरा उद्देश्य है, हमारी संस्था का उद्देश्य है, सभी बच्चों को एक भावना आए, कोई छोटा है बड़ा है, ऐसे हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है, और माता पिता की, देश की, समाज की, सबकी हमने देखभाल करनी है। ऐसा नहीं कि हम स्कूल से पढ़े, अपना काम किया और अपनी लाइफ में बिजी हो गए, ऐसा हमारे को संस्था नहीं सिखाती है। हमारी विद्या भारती का मेन मंत्र यही है कि हम अपने लिए तो करें ही करें, और अपने समाज के लिए और देश के लिए भी जितना हम प्रयास कर सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं, जरूर निकालें उसके लिए। जो विद्या भारती में आज सिखाया जा रहा है और जो उद्देश्य है हमारा चल रहा है अभी, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें, बाकी कॉन्वेंट स्कूल्स का और हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा फर्क है। जितने भी बाकी आज दिल्ली में बोले या इंडिया में स्कूल्स हैं, उनका जो थिंकिंग है वो प्रोफेशनलिज्म में चले गए हैं, हाउ टू मेक मनी। उनको बच्चों को संस्कार से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे किस प्रकार विद्यालय में आते हैं, क्या ड्रेसेस पहनते हैं, क्या वीडियो देखते हैं, क्या टीवी देखते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देते, उल्टा वो उसको प्रमोट करते हैं। अब मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, जल्दी सब जानते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों को क्या सिखाते हैं, पार्टी करो, घूमने जाओ, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, कैसे कपड़े पहनने हैं। बहुत से स्कूलों में गर्ल्स के लिए ये कहते हैं कि स्कर्ट्स आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, जो कि वो बच्चे की अपनी इच्छा है। और अभी से हम अगर इन चीज़ों में चले जाएंगे, बच्चे का ध्यान कपड़ों में आने जाने में उसको लग जाएगा कि मैंने क्या पहना है, मेरे बाल कैसे बने हुए हैं, मुझे पार्लर जाना है, उसको पढ़ाई से ध्यान हटके उस तरह कमर्शियल चीज़ों की तरफ चला जाएगा। हम सिखाते हैं कि सुबह स्कूल में आए वंदना करें, भोजन से पहले वंदना करें, शाम को छुट्टी से पहले वंदना करें, घर पे जाएं, माता पिता के चरण छुए, उनको मान सम्मान दें, टीचर जो हमारे गुरु हैं उनको हम सम्मान दें। ऐसा चीज़ सिर्फ विद्या भारती ही सिखाती है, कोई प्राइवेट स्कूल इस बारे में बिल्कुल नहीं सिखाते। तो ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है हमारे विद्यालयों में और बाकी विद्यालयों के अंदर। सर, आने वाले पीढ़ी को जो हमारे यहाँ विद्यालय से पास आउट हो रहे हैं,
इतनी अच्छी बातों के अलावा थोड़ी सी कुछ और बातें गाइड करेंगी। आपने देशभक्ति की भावना की बात भी करी, आपने माता पिता की भी बात करी, थोड़ा सा एकेडमिकली और किस तरह से खेल के जरिए भी बच्चे अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, थोड़ा सा समाज को इस बारे में भी जागृत करें। आज सरकार भी खेलो इंडिया के माध्यम से खेल को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारे विद्यालय भी एक बेसिक जो हमारे पुराने खेल भी हैं उनके साथ भी चल रहे हैं और जो नए खेल आज की डेट में आ रहे हैं वो भी प्रमोट कर रहे हैं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं आज की डेट में ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उसके अंदर तो उनको कितना पारितोषिक मिल रहा है, उनको इंसेंटिव कितना मिल रहा है, जो इंसेंटिव सरकार भी दे रही है और स्कूल भी देते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन रही है बच्चों के लिए। आज जैसे ओलंपिक में मेडल जीत के आए पीछे बच्चे जो है अपना, उसमें 7 करोड़ रुपए तक उनको टोटल इनाम की राशि मिली। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है बच्चों के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए कि हम पहले था सिर्फ मेडल मिल गया उसके बाद कोई पूछता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मेडल मिलने के साथ साथ आपको नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बहुत से बच्चे अब खेलों की तरफ जो है जा रहे हैं कि मैं कल को अपना खेल को कैरियर बना सकता हूँ। पहले ऐसे लोग नहीं सोचते थे, तो गेम खेली अपने एक नाम के लिए खेला और खेल गेम खत्म कर दी, लेकिन अब हम उसको कैरियर बना सकते हैं। चाहे क्रिकेट है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे जिम्नास्टिक है। नीरज चोपड़ा जी हमारे बहुत बड़े उदाहरण है जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर इतनी ऊंचाई पैदा करी और कितना नेम फेम वो देख रहे सब बच्चे, कितना नेम फेम वो ले चुके हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत जरूरी है, ये हम सब बच्चों को बताते हैं, विद्यालय में सिखाते हैं कि जरूर खेले, अपना शरीर समय जो है करे, व्यायाम करे डेली, जो हमारे योगा क्लासेस चलती हैं। बाकी स्कूलों में नहीं है, हम कहीं भी देख सकते हैं कि बाकी स्कूलों के मुकाबले हमारे स्कूल में योगा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, कैरियर बन के आ रहा है स्पोर्ट्स, उसके ऊपर बच्चे जरूर ध्यान दें। धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। आज हमारे विद्यालय के मैनेजमेंट के सदस्य श्रीमान मुकेश मित्तल जी हमारे साथ हैं और ये हमारे विद्यालय से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। सर मैं चाहूँगी कि आज आप हमें बताइए कि इतने वर्षों की जो यात्रा आपने हमारे साथ स्कूल की है, इसमें आपके क्या अनुभव रहे हैं हमारे स्कूल के साथ? ज़्यादातर सुखद अनुभव रहे हैं। विद्यालय अब कहीं से कहीं पहुंच गया। सबसे पहले शायद 77 में आया था इस विद्यालय परिसर में, जब यहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद फिर बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सुषमा स्वराज जी ने किया था। उस समय शायद प्रिंसिपल जो मुझे ध्यान है कुलदीप चौहान जी थे। फिर बाद में मैं करीब 2003 से पश्चिमी विभाग समिति में जुड़ा था और आई थिंक नवंबर 2003 में या 1-2 महीने बाद मेरे को पश्चिम विभाग का ट्रेजरर नियुक्त किया गया था। मैंने हालांकि मना भी किया, बट उस समय के जो विभाग के मंत्री ने उन्होंने इंसिस्ट किया। सुखद दुखद दोनों अनुभव हैं। संस्था काफ़ी आगे बढ़ गई है। उस समय हमारे जो विद्यार्थी थे करीब 50% विद्यार्थी 10 से लेकर और 50% फी कंसेशन पे थे। 2 साल पहले तक शायद अब कुछ भी कंसेशन नहीं था। ये अब कोविड टाइम में ज़रूर फीस की प्रॉब्लम अराइज हो गई है, जिसकी वजह से पेमेंट्स में भी दिक्कत आ रही। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान गजराज जी, जो समर शिक्षा समिति पश्चिमी विभागीय समिति के मंत्री हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे अभी उस परिस्थिति में ढलने के लिए शायद मानसिक रूप से तैयार भी नहीं है। ऐसे में सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश दें, ताकि वो जिस परिस्थितियों से बाहर निकलकर स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं वो बेझिझक होकर स्कूल आ पाए। सर धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा। वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से मेरा एक निवेदन है कि वे इस लंबे कोरोना काल की महामारी के बाद अभी विद्यालय में आना प्रारंभ हुए हैं, तो विद्यालय में आकर के अपने आप को विद्यालय के वातावरण में समाहित करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने आप को और दूसरे साथियों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करें।
मुंह पर मास्क अवश्य प्रयोग करें, एक दूसरे से दूरी रखें, हाथ न मिला करके ये नमस्ते का प्रयोग करें, और अगर कहीं पर हम स्पर्श करते हैं तो हाथों को धोते रहें। ये जो कोरोना काल का प्रोटोकॉल है इसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। और बहुत दिन के बाद क्योंकि विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो यथासंभव धूप में भी रहने का प्रयास करना, जिससे हमारी विटामिन डी की जो कमी शरीर में आ गई है उसकी पूर्ति हो सके। और घर में जाकर के भी जो विद्यालय में हमारी समस्त शिक्षा समिति के विद्यालय में जो हमें संस्कार मिलते हैं विद्यालय में रहते हुए, उसका पालन घर में भी करें। जैसे भोजन मंत्र हम विद्यालय में करते हैं, घर पर भी हमें भोजन मंत्र अवश्य करना चाहिए। स्वयं भी करें, अपने छोटे भाई बहन माता पिता उनके सामने उनको साथ लेकर के भी भोजन करते हैं तो उनको भोजन प्रारंभ करने से पहले हम भोजन मंत्र करेंगे, हाथ जोड़ करके जैसे बताया जाता है उसी तरह से पालन करते हुए हम करें। और जैसा आधारभूत विषयों के अंतर्गत हमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो शिक्षा दी जाती है योगाभ्यास और प्राणायाम का, उसको भी हम प्रतिदिन प्राणायाम और योगासन का अवश्य पालन करें। कुछ समय निश्चित करके प्राणायाम जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, इन प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। और अभी जैसे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान चला था, उसका उद्देश्य ये था कि सब में सूर्य नमस्कार के प्रति एक लगाव पैदा हो, वो सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का अंग बना सके। तो मेरा आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि कम से कम 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अवश्य दिनचर्या का अंग बनाएं। ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है और मैं आशा करूँगा कि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप की, अपने परिवार की और अपने साथियों की सुरक्षा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर विचार। धन्यवाद। We just heard the views and vision of the officials of Samar Shiksha Samiti and Vidya Bharati Akhil Bharati Shiksha Sansthan. With immense pleasure, we would like to share with you the glory and laurels that are brought by our students to our school in the fields of art and sports. Our student Vaibhav of class 12 has bagged first position at the senior category of the state level cultural painting competition, and Mohit of class 9 has also scored the first place in the junior category of state level drawing competition. In sports too, we are creating marvels. Vasudev of class 11 has got selected in Khelo India. In inter-zonal competition organized by DOE at Chhatrasal Stadium, Hiten of class 11 and Parth of class 7 have secured second position. Vasudev of class 11 got third prize and Lakshay of class 12 got bronze medal in the same sport. Thus, this is very much evident that we nurture our scholars academically, physically, mentally, morally and culturally, paving a path of success for them and, in turn, creating an asset for our society, our nation and for the world at large. Thanks for watching and wait for the next video.